Good morning, class. Today we are going to revise the chapter noun that we already study. The revision of noun. First, we are going to talk about the definition of noun again. I think you all know the definition of noun and you have already learned it. So let's start. The words that we use for naming people, place, animals and things are called noun. All the names that we are using for peoples, animals, things are nouns. For example, name of a person like Ram, Naresh, Suresh, name of animal like it's dog, cat, lion, things like pen, table, book, and places like it's school, Delhi, Kolkata, Agra. So these have some specific names that are given to these words. So these are called nouns. Second definition, second line, naming words are called noun means all the words that have names are called noun. Everything that surrounds us has a particular or specific name that is called noun. For example, I am sitting on the chair. So here chair has a particular name of a thing. So chair is your noun. For example, book. This is book. So what is it? This is noun. यानी कि कोई भी नाम जो हम इंसानों को दें, जानवरों को दें, जगह को दें, चीज़ों को दें, वो आपका क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उन सब का कोई ना कोई नेम ज़रूर होता है. जिस नेम से हम उन्हें जानते हैं वो क्या होता है? नाउन. और हर चीज़ का कोई ना कोई पर्टिकुलर नेम ही होता है जिससे आप बुलाओगे. सो इन शॉर्ट, nouns are the naming words. Nouns are the naming words. For example, mother, father, cow, pig, table, book, school, etc. are examples of noun. Now we are going to talk about the kinds of noun, that how many kinds of noun are there. There are 5 kinds of noun. First is common noun, second is proper noun, third is collective noun, fourth is material noun, fifth is abstract noun. नाउन को हम संज्ञा बोलते हैं, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन को सामग्री संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा. Now we are going to discuss about these nouns in detail. So first is your common noun. First we are going to study about the common noun. The definition of common noun is nouns that name a person, place or things of any one group or class are called common noun. मीन्स किसी भी इंसान का नाम, जगह का नाम, चीज़ों का नाम जिनका एक ही ग्रुप हो, एक समूह हो, एक क्लास हो, तो आपका क्या कहलाता है? कॉमन नाउन. एग्जाम्पल के तौर पे आप स्टूडेंट ले लीजिए. स्टूडेंट्स एक ही ग्रुप के होते हैं, राइट? बट उसमें डिफरेंट क्या होता है? बॉय एंड गर्ल. So here student is your common noun because it is a one group of persons or a class of persons. Table, it's a common. जितने भी टेबल्स होते हैं आप उनको टेबल ही कहते हो, किसी का अलग नेम नहीं होता. स्कूल,
स्कूल आपका कॉमन नाउन है। अब अगर हम इस स्कूल को कोई नेम दे दें, फॉर एग्जांपल कीसा कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल, एक नेम दे दिया हमने स्कूल को। नेम देने के बाद वो स्कूल आपका किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। क्यों आएगा? बिकॉज वी गेव अ प्रॉपर नेम और स्पेशल नेम टू दैट स्कूल. Until and unless we are not giving the name of anything, so these all are noun come into common noun. When these are common, that can either be male or female. यानी कि जो मेल भी हो सकता है, जो फीमेल भी हो सकता है, वो आपका क्या होता है? कॉमन नाउन होता है. Come to the next one, that is your proper noun. The definition of proper noun is special nouns. Name a specific person, place or thing. They always begin with capital letter are called proper noun. यानी कि जो स्पेशल नेम्स होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया स्कूल है तो वो कॉमन में आएगा. अब हमने स्कूल को नेम दे दिया कृष्णा इंटरनेशनल, तो वो किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा. राइट. पेरेंट्स हैं, वो किस में आएगा? कॉमन नाउन में आएगा. क्यों? क्योंकि पेरेंट्स आपके पापा भी होते हैं, पेरेंट आपकी मम्मी भी होती हैं. अगर हम बात करें मम्मी की, मम्मी का नेम ले लें यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. आपके पेरेंट्स ने आपको एक नेम दिया है, वो आपका प्रॉपर नेम है, जिस नेम से आपको सब बुलाते हैं. राइट. कोई आपको ऐसे तो नहीं बुलाता बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, ये कह के नहीं बुलाते ना, आपके नेम से बुलाते हैं. वो आपके क्या होते हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. एंड जितने भी आपके प्रॉपर नाउन्स होते हैं, यानी कि जितने भी नेम्स होते हैं, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो जगह का हो, चाहे वो आपकी किसी वस्तु का नाम हो, दे ऑलवेज बिगेन विद कैपिटल लेटर. यानी कि हमेशा बड़े अक्षरों से उन वर्ड्स को स्टार्ट किया जाता है. एग्जाम्पल्स पे आइए. राम, ट्यूसडे, मैंगो, इंडिया, रिवर नाइल. All these words are starting from the capital letters. Why? Because these are the proper nouns. Here, Ram is a proper because Ram is a name of a boy. Tuesday is the name of week. अगर हम यहाँ week लिखते हैं तो वो common में आता है. Week common क्यों है? क्योंकि week में 7 weeks होते हैं. कोई भी week हो सकता है, हम किसी भी हफ्ते की बात कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे उस week का, उस हफ्ते का नाम दिया है, तो ये किस में आएगा? आपका प्रॉपर नाउन में. मैंगो, मैंगो की जगह अगर हम यहाँ फ्रूट्स लिखते तो वो किस में जाता? कॉमन नाउन में. क्यों जाता? क्योंकि फ्रूट्स आपके कोई भी हो सकते हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, कुछ भी हो सकता है. हमने यहाँ पे मैंगो लिखा है तो वो किस में आ गया? प्रॉपर नेम में, क्योंकि उसको प्रॉपर नेम गिवन है. नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन, इट नेम्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन or things taken together and treated as one. Or you can say that a group of people, animal, thing are called collective nouns. Means किसी भी चीज़ का ग्रुप, किसी भी चीज़ का कलेक्शन, किसी भी चीज़ का समूह आपका क्या होता है? कलेक्टिव नाउन. चाहे वो लोगों का समूह हो, चाहे वो किसी वस्तु का समूह हो, चाहे वो जानवरों का समूह हो, वो आपका क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी अ बंच ऑफ फ्लावर. यहाँ पे फूलों के समूह को क्या कहा जाता है? बंच कहा जाता है. तो बंच यहाँ पे क्या है? कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स. बंच इसमें क्या हो गया? आपका कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट है आपका द प्राइड ऑफ लायंस वॉज asleep. यानी कि जो लायंस का प्राइड है, लायंस का झुंड है, वो सो रहा है. हेयर लायंस प्राइड. लायंस के झुंड को आप क्या कहते हो? प्राइड कहते हो. तो वो क्या हो गया? आपका कलेक्टिव नाउन. प्राइड आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट आ जाइए, मटीरियल नाउन. इतना आप सबको क्लियर है ना, जितनी डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं? एंड आई होप कि आपको क्लियर होगा, बिकॉज हम ऑलरेडी टॉपिक में आगे कवर कर चुके हैं ऑल द नाउन्स, ऑल द डेफिनेशन ऑफ नाउन. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द होल चैप्टर. टुडे वी आर जस्ट डूइंग अ रिवीजन. सो नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका मटीरियल नाउन. क्या है आपका? मटीरियल नाउन.